मकसद पेन मैनेजमेंट के बारे में एक अवेयरनेस को क्रिएट करना है। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए आई वुड पर्सनली वांट टू थैंक डॉक्टर उमर मिर्जा एंड ऑल ऑफ द पीएमए टीम ऑफ JLM चैप्टर। और इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि हम एक प्रॉपर वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे पेन मैनेजमेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस कोविड सिचुएशन वी हैव टू कम विद अ वेबिनार। Inshallah Taala, after this introduction to this pain management, we will try our level best कि जब हमें situation permit करेगी, Inshallah Taala, we will arrange a proper clinical session जिसमें हम dummy patients भी लेके आएंगे और जिसमें हम mannequins भी लेके आएंगे, and we will Inshallah have a very good workshop on pain management. So hope for the best. Now हम start करते हैं introduction to the pain management. So, what is pain? According to the International Association for Study and Treatment of Pain, they define it as an unpleasant sensory and emotional experience which is associated with actual or potential tissue damage or describes in terms of such damage. अब इस definition में उन्होंने pain के लिए सारे factors को ज़हन में रख लिया कि it is an unpleasant sensory and emotional experience with potential or actual tissue damage. So अगर हम pain को classify करना चाहें तो there are multiple classification, but we are going to start with the very basic things कि हम pain को acute pain और chronic pain पे classify कर सकते हैं. Acute pain is basically a nociceptive pain and it is usually related to a discrete events like post-operative pain, a trauma or a fracture pain. The chronic pain, which is a bit of worse thing, it may be due to nociceptive, but in which psychological and behavioral factors play a major role. Or typically, it is said when the pain lasts for more than 3 months. It is said that now it has become the chronic pain. So again, coming back to acute pain, it can be variously classified as according to etiology like arthritis, cancer pain, according to affected area like headache and back pain. And these such classifications are very helpful for us to to choose the treatment modalities and drug therapies. Again, chronic pain can be nociceptive, can be neuropathic, and can be mixed. A neuropathic pain is a classical example of chronic pain. Or classically, it is paroxysmal, it is lancinating and burning in quality. There are various forms of chronic pain like musculoskeletal disorders, chronic visceral disorders, lesion of peripheral nerves, and lesions of central nervous systems, and cancer pain. जब हम पेन को समझना चाहते हैं तो it is very important for us to understand the physiology of pain perception. आज हमारे पास शायद टाइम परमिट ना करे कि हम बहुत डिटेल में जाएं, बट वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ पेन, बिकॉज यही फिजियोलॉजी हमें लीड करेगी पैथोफिजियोलॉजी में और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज के ऊपर. सो जिस तरह हम सारों को पता है, जो हमने अपने अर्ली मेडिकल स्कूल डेज में पढ़ा था कि एक रिफ्लेक्स आर्क है, व्हेनेवर देयर इज अ पेन दैट इज द नोसिसेप्टर्स, कि जिन्होंने कोई भी केमिकल या कोई भी स्टिमुलस को एक्वायर किया, उसके बाद वो जब थ्रेशोल्ड लेवल को उन्होंने क्रॉस किया तो देयर इज अ इम्पल्स. दैट इम्पल्स इज ट्रांसडक्टेड एंड इट इज देन कंडक्टेड थ्रू स्पाइनल नर्व्स. अब स्पाइनल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पाइनल नर्व हमारे पास बिल्कुल एक वायरिंग की तरह है, एक वायर की तरह है जिसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स हैं. उसके अंदर सी फाइबर्स हैं, उसके अंदर ए बीटा फाइबर्स हैं, ए डेल्टा फाइबर्स हैं एंड ए गैमा फाइबर्स हैं. बट for the pain, we are basically concerned with the C fibers, which are small and unmyelinated fibers, and A beta fibers. Then all these impulses are conducted into the spinal cord, and here another process that is known as transmission or modulation occurs. This transmission or modulation is a very important process to understand the chronic pain. फिर कुछ ट्रैक्स के थ्रू यही परसेप्शन जो है वो ब्रेन तक जाती हैं जहाँ पे ये पेन परसीव होता है.
So this is a very simple model of physiology of pain perception. So जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी में ट्रांसडक्शन और कंडक्शन के अलावा जो मेन फैक्टर है जहाँ पे पेन की पैथोफिजियोलॉजी अगर हो रही होती है, दैट इज द मॉड्यूलेशन ऑफ द पेन. A modulation of the pain is basically स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब वेरियस स्टिमुलाइज आ रही होती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड ने उनको सेग्रीगेट करना होता है और उस सेग्रीगेशन में से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं उनको ब्रेन तक लेके जाना होता है. बट जब भी पेन परसिस्ट करता है तो वो उन सेंटर्स में जिन्होंने उन स्टिमुलस को मॉड्यूलेट करके ऊपर पहुंचाना होता है उनमें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है. सो ये मॉड्यूलेशन कहाँ पे हो सकती है? ये नोसिसेप्टर लेवल्स पे भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी हो सकती है और सुप्रास्पाइनल स्ट्रक्चर्स पे भी हो सकती है. सो दिस मॉड्यूलेशन कैन ईदर फैसिलिटेट और इनहिबिट. इन एक्यूट पेन जब हम पेन को अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं तो दिस मॉड्यूलेशन बेसिकली इनहिबिट्स द पेन. बट अगर इसकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से ना हो पाए या पेन एक खास अरसे से ज्यादा परसिस्ट करे तो दिस मॉड्यूलेशन स्टार्ट्स फैसिलिटेटिंग और इंटेंसिफाइंग द पेन. So this is the scheme कि जब नोसिसेप्टिव स्टिमुलस कंटिन्यूस जाती है तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं. एक एंटी नोसिसेप्टिव मॉड्यूलेशन होती है जो कि पेन को रिवर्स कर रही होती है और एनाल्जेसिया कर रही होती है. लेकिन उसी के साथ अगर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रहा तो प्रो नोसिसेप्टिव मॉड्यूलेशन हो रही है जो कि पेन को एग्रीवेट करेगी और हाइपर एल्जेसिया करेगी. अब हाइपर एल्जेसिया बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. हाइपर एल्जेसिया इज बेसिकली आप उन चीजों को पेन परसीव करते हैं जो नॉन या वो थोड़ी सी पेन वाली चीजें होती हैं. सो वो हाइपर करके पेन परसीव हो रहा होता है. इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हाइपर एल्जेसिया जो कि अगेन पेरिफेरी में भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है. पेरिफेरी में क्या होता है कि जो नोसिसेप्टर्स हैं उनका थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है और उनकी फायरिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस फायरिंग करना शुरू कर देते हैं कि पेन क्या स्टिमुलस नहीं होता तभी वो पेन परसीव कर रहे होते हैं. और सेकेंडरी हाइपर एल्जेसिया बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो रही होती है जिसपे वहां पे लोकल टिश्यू एडीमा हो रहा होता है और सेंसिटाइजेशन हो जाती है नॉक्शियस स्टिमुलाई की. सो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी पैथोफिजियोलॉजी में, मॉड्यूलेशन और हाइपर एल्जेसिया. सो जब हम उसी रिफ्लेक्स आर को देखते हैं कि अगर पेन है तो वो सर्टन पाथवे के थ्रू सेंट्री कॉर्टेक्स में जा रहा है. इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है जिसको हमने देखना है दैट इज डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब डॉर्सल हॉर्न में जो हमारा लेमिना है उसमें सर्टन न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं जिनको हम लेमिनास बोलते हैं और इस पूरी अरेंजमेंट को रिक्स्ड स्पाइनल कॉर्ड लेमिना बोलते हैं. इसमें से जो हमारे लिए क्रोनिक पेन के लिए जो इम्पोर्टेंट लेमिना है दैट इज लेमिना नंबर 5 जिसके अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के साथ साथ WDR न्यूरॉन्स होते हैं जिनको वाइड डायनेमिक रेंज न्यूरॉन्स कहते हैं. अब ये वाइड डायनेमिक रेंज न्यूरॉन्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म के होते हैं बिकॉज ये नॉक्शियस और नॉन नॉक्शियस दोनों तरह की इनपुट ले रहे होते हैं और ये C फाइबर्स A बीटा और A डेल्टा सारे फाइबर्स की ले रहे होते हैं. और जब इनकी रिपीटेड स्टिमुलेशन होती है तो ये करेक्टरिस्टिकली अपनी चीजों को वाइंड अप कर लेते हैं कि ये नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई को भी नॉक्शियस स्टिमुलाई के तौर पे परसीव करते हैं और आगे ब्रेन को रिले करना शुरू कर देते हैं. सो इन क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट में हमें वाइड डायनेमिक न्यूरॉन जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर बड़ा स्पेसिफिकली गौर करना पड़ता है. जिस तरह हमें पता है कि सारे मीडिएटर्स के लिए सारे रिसेप्टर्स के लिए मीडिएटर्स होते हैं, इसी तरह क्रोनिक पेन में बहुत से मीडिएटर्स काम कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेडिकानिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ये सारी चीजें हैं. बट दो मीडिएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज सब्सटेंस बी और सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स. ये दोनों पेरिफेरी पे भी काम कर रहे होते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर्स पे भी काम कर रहे होते हैं और सुप्रास्पाइनल स्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे होते हैं. The next thing is the assessment of the pain. It is a very difficult thing. It is as difficult as finding a book in this library. So
अगर हमें पेन की असेसमेंट करनी है तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें पेशेंट की फिजिकल फंक्शनिंग का, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, उसकी ऑब्जेक्टिव कोरिलेट्स को हमने देखना है, फिर पेन की इंटेंसिटी को, फिर पेन के लोकेशन को, उसके इफेक्टिव रिस्पॉन्स को और उसके कंपोजिटिव मेजर्स को देखना है. सो पेन असेसमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी थिंग, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनसे हम पेन को मेजरमेंट करते हैं. एडल्ट्स में दो टूल्स पूरी दुनिया में बड़े वाइडली यूज होती हैं. वन इज नोन एज न्यूमेरिकल पेन स्केल एंड द अदर वन इज द विजुअल एनालॉग स्केल. अब न्यूमेरिकल पेन स्केल में जस्ट एक सिंपल लाइन है जिसमें 1 से 10 तक ग्रेडिंग्स है. सो अगर कोई पेशेंट के हम उनसे पूछते हैं कि जी आपको अगर 0 का मतलब है कोई पेन नहीं है और 10 का मतलब है कि वर्स्ट पॉसिबल पेन है, तो आप ये बताएं कि जी आपका पेन कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 10 है. सो 1 to 3 is a mild pain, 3 to 7 is a moderate pain, and above 7 is a severe pain. इसी तरह विजुअल एनालॉग स्केल में जस्ट भी ड्रॉ लाइन और पेशेंट से पूछते हैं कि जी आपका दर्द इस लाइन पे कहाँ पे है. सो इफ पेशेंट puts his finger or across to the first half of the line, that is mild pain, in between is a moderate pain, and in the last corner it is a severe pain. इसी हालांकि ये यूरोप में बहुत वाइडली यूज हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में हमने ये देखा है कि ये बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज लोगों को समझने के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. यहाँ पे पाकिस्तान में हम एक और पेन स्केल यूज कर रहे हैं जो कि हमारे वर्दी प्रोफेसर ब्रिगेडियर सलीम साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये इंटरनेशनली भी बड़ा फेमस हुआ है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, एंड दैट इज नोन एज कॉइन स्केल. उसमें हम पेशेंट से सिंपली पूछते हैं, जो कि किसी जमाने में 1 रुपए में 12 आने होते थे, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि जी आपको दर्द कितना है, 4 आने हैं, 8 आने हैं, 12 आने हैं, ये 1 रुपये का दर्द है. सो पेशेंट उस चीज को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं और हमें बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. तो 4 आने का मतलब यह है कि पेशेंट को माइल्ड पेन है, 8 आने का मतलब है कि पेशेंट को मॉडरेट पेन है, और 12 आने और इससे ज्यादा का मतलब है पेशेंट को सीवियर पेन है. बट बच्चों में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे चीजें पूछना. बच्चों में फिर फेस स्केल्स यूज होते हैं और ये फेस स्केल्स भी डिफरेंट है, हर मुल्क में डिफरेंट, लेकिन उनमें बेसिकली सारी वही चीजें हैं कि 5 फेसेस हैं. अगर बच्चा हंस रहा है तो दैट मीन्स कि उसको कोई पेन नहीं है, और अगर बच्चा रो रहा है तो दैट मीन्स कि इट इज वर्स पेन. इसी तरह ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं जो कि मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में यूज हो रही हैं, बट ऑल सारे तकरीबन सेम हैं, जिसमें 5 पिक्चर्स होती हैं और हर एक में 2-2 का एडिशन होता है. कुछ और अच्छे पेन सेंटर्स में कुछ क्वेश्चनर यूज होते हैं, जिसमें मेगल पेन क्वेश्चनर है और जेनेटिक पेन असेसमेंट है. अब मेगल पेन क्वेश्चनर बड़ा एक इंपॉर्टेंट किस्म का है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पेन के एस्पेक्ट्स होते हैं. ये जो हमने न्यूमेरिकल पेन स्केल और फेशियल पेन स्केल यूज किया है, इसमें बेसिकली पेन की इंटेंसिटी सिर्फ मेजर कर रहे होते हैं, बट मेगल पेन स्केल में हम पेन की इंटेंसिटी के साथ उसकी लोकेशन भी कर रहे होते हैं, और जहाँ पे पेशेंट बॉडी में लोकेट करता है वहां पे डॉट लगाता है, वहां पे वो ई या आई लिखता है. ई का मतलब है कि एक्सटर्नल पेन है, आई का मतलब है कि वो इंटरनली विसरा में हो रहा है, और उसके बाद वो अपने पेन को कमेंट करता है. सो बड़े सेंटर्स में जहाँ पे पेन का ज्यादा काम हो रहा है वहां पे ये मेगल पेन क्वेश्चनर यूज हो रहा है. बट ये छोटे से टूल्स हैं जिनकी वजह से हम पेन को बड़े अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं कि पेन के क्या हालात हैं. देन नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट ऑफ द पेन. ऑल्दो इट्स लुक वेरी सिंपल कि आपने एक बड़े बॉल को आप खेल लेके जाना, बट बिलीव यू मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसमें हमारे फंक्शनल जो गोल्स होते हैं तो ये है कि पेशेंट की फिजिकल थेरेपी को हमने प्रोग्रेस करना है, उसकी स्लीपिंग पैटर्न को हमने बेहतर करना है, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है, पेशेंट वर्क पे वापस जा सके, उसकी सोशल एक्टिविटीज इंक्रीज हो सके और रेगुलर एक्सरसाइज कर सके. जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे पास हैं वो फार्माकोलॉजिकल हैं, मल्टी मॉडल थेरेपी है, एडजुवेंट्स हैं, इंटरवेंशनल मैनेजमेंट है और साइकोलॉजिकल है. अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मल्टी मॉडल थेरेपी है. मल्टी मॉडल थेरेपी ये है कि हम 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एजेंट्स यूज करें
जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये सिनर्जिस्टिक एक्शन करते हैं और कम डोज के साथ हम ज्यादा इफेक्ट लेते हैं. सो व्हाट WHO recommends, WHO recommends कि अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, सो वी शुड स्टार्ट विद द नॉन ओपियाइड एंड देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी. अगर पेन हमारा मॉडरेट टू सीवियर है, सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 2, जिसमें हम माइल्ड ओपियाइड्स फॉर एग्जांपल कोडीन या ट्रामाडोल ऐड करते हैं विद नॉन ओपियाइड्स. और स्टेप 3 में जिसमें हमारे पास सीवियर पेन है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स लाइक मॉर्फिन विद नॉन ओपियाइड्स. और एक नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, जिसमें हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट करते हैं. अब इंटरवेंशनल मैनेजमेंट है क्या? इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में हम नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं जो कि सिंगल शॉट भी होते हैं और कॉन्टिन्यूस भी होते हैं. इसमें हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, स्पाइनल एनाल्जेसिया और पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया यूज करते हैं. सो अगर हम इन सारी चीजों को समराइज करें तो उसी रिफ्लेक्स को देखते हुए हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं कि अगर हम पेरिफेरी के लेवल पे हम पेशेंट के पेन को ट्रीट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या मोडालिटीज हैं. हम एसिटामिनोफेन यूज कर सकते हैं, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज ड्रग्स कर सकते हैं, कॉक्स2 कर सकते हैं, नॉन ओपियाइड्स कर सकते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर पेन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज कर सकते हैं पेरिफेरल नर्व्स के, जो सिंगल शॉट भी हो सकते हैं और कैथेटर के थ्रू भी हो सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हम डॉर्सल हॉर्न के ऊपर जा रहे होते हैं और लैमिना 5 के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसमें जो हमारी ड्रग्स काम कर रही होती हैं, उसमें लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जो कि एपिड्यूरल और स्पाइनल के थ्रू उसके काम देते हैं. उसके अलावा ओपियाइड्स हैं, एडजुवेंट्स में अल्फा 2 एगोनिस्ट्स हैं, एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं और कॉक्स2 इनहिबिटर्स हैं. एंड फाइनली जब हम सुप्रास्पाइनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास ड्रग्स जो हैं, ओपियाइड्स भी हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट्स भी हैं, एनएमडीए रिसेप्टर्स भी हैं और बाकी एडजुवेंट्स भी हैं. सो हम आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं. आज हम इस प्रॉपर सिनेरियो के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये जस्ट आपको एक व्यू दे रहे हैं. उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब हम एक प्रॉपर वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे उसमें हम इन सिनेरियोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं लाइक 77 years old man present to pain clinic with severe backache. He has a background history of prostate cancer. The back pain is of more than 6 months duration and is associated with stabbing pain which radiates to his left foot. और जो पेशेंट मेडिकेशंस ले रहा है वो ibuprofen 400 TDS ले रहा है, पैरासीटामोल 1 ग्राम QID ले रहा है और गाबापेंटीन 100 मिलीग्राम TDS ले रहा है. तो इसका मतलब यह है कि वो मेडिकेशन की फुल डोज पे है. तो जब पेशेंट हमारे पास पेन क्लिनिक में आता है तो हमारे फोकस किस चीज पे होता है? हमारा फोकस होता है रेड फ्लैग्स पे, कि हमने देखना है कि पेशेंट को रेड फ्लैग्स तो नहीं है. अगर रेड फ्लैग्स हैं तो हम फौरन न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ मूव करते हैं. देन उसके बाद हमारा फोकस होता है येलो फ्लैग रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, कि येलो फ्लैग रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि अगर येलो फ्लैग रिस्क फैक्टर्स होंगे तो हम पेशेंट को स्टार्ट में ही मल्टी मोडल रिजिम के ऊपर ले जाते हैं ताकि पेशेंट क्रोनिक पेन की तरफ ना जाए. देन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पेशेंट की एक्चुअल डायग्नोसिस बनानी है, कि आपने डिफरेंशियल डायग्नोस करना है और आपने प्रॉपर डायग्नोस बनानी है, क्योंकि जब तक हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होगी हम पेन को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेंगे. फिर डायग्नोस के बाद हम देखते हैं कि हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है ताकि हम अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें. देन फिर हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो हम पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी. नाउ आई विल लाइक कि आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको लें. जी डॉक्टर उमर. जी माशाल्लाह, excellent presentation, Dr. Mubashir. Very nice description of the basics and then the clinical aspect and then the scenario. मेरे ख्याल में थोड़ा सा आई ओपनिंग था सबके लिए. एक ऐसी चीज जो कि सारे डील कर रहे होते हैं पेन्स को, हर स्पेशलिटी वाले डील कर रहे होते हैं, बीइंग ophthalmologist or pediatrician, medical specialist,
सर्जन, आई थिंक सारी स्पेशलिटी में पेन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें अब क्वेश्चन आई थिंक अगर कोई है तो वो तो अच्छा है। उसमें दो ऑप्शंस है, एक तो यस, एक तो टेक्स्ट है जो कि यूज हो रहा है अभी माशाल्लाह। टेक्स्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा आप रेज हैंड कर सकते हैं, वहां से आप लाइव वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। एक मिनट इसको चैट को। डॉक्टर वर्षा, देयर इज अ जी जी क्वेश्चन फ्रॉम Dr. Tufail, Dr. Tufail Rafe, and he's asked about use of tramadol in asthmatic patients. सर बेसिकली हमने हर पेशेंट की इंडिविजुअली उसके लिए ड्रग को मॉडिफाई करना होता है। बेसिकली हमने उसकी सारी कोमोर्बिडिटीज को देख के उसके लिए करना होता है। स्पेसिफिकली ट्रामाडोल एस्थमेटिक में यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम पेन मैनेजमेंट में ट्रामाडोल को यूज कर रहे होते हैं तो ट्रामाडोल में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये वीक ओपियाइड भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है जो नॉन स्टेरॉइडल है। बट इसमें वो स्पेसिफिक नॉन स्टेरॉइडल एलिमेंट्स नहीं है जो कि नॉन स्टेरॉइडल्स में है। अब एस्थमेटिक्स में बेसिकली एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और एस्पिरिन की वजह से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। और ट्रामाडोल में हमने ये देखा है कि इसमें ऑल्दो वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कर रहा होता है बट वो हिस्टामिन को उस तरह रिलीज नहीं कर रहा होता। सो ट्रामाडोल इज क्वाइट सेफ। अगर आपके पास मॉडरेट पेन है और आपके पास कोडीन और बाकी चीजें नहीं हैं तो फिर आप ट्रामाडोल यूज कर सकते हैं। राइट, आई होप मेरे ख्याल का आंसर समझ आ गया। अच्छा, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं बट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। डॉक्टर अरशद मलिक, आई थिंक प्रिंसिपल एंड डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ, आई थिंक इज टेक्स्ट मी, मैं क्योंकि पहली दफा इंट्रोडक्शन दिया इनका। डॉक्टर अरशद मलिक इज प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डीन ऑफ HPS डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद and he is from PMH Akwal. Sir, welcome. Sir, इनका क्वेश्चन है safety measures prescription analysis in pregnancy. सर प्रेगनेंसी में हमारी वही सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि जनरल हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो एडजुवेंट्स यूज करते हैं, हम एडजुवेंट्स में जो सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं वो प्रीगैबलिन्स हैं जिनकी रिकमेंडेशंस फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सेफ नहीं है। सो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम उनको यूज नहीं करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उनको इजीली यूज कर सकते हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना ये है कि हम प्रीगैबलिन्स को बहुत इरेशनल यूज कर रहे हैं। जो FDA वार्निंग है वो इश्यू हो चुकी है प्रीगैबलिन्स के लिए, और प्रीगैबलिन्स की वो कहते हैं कि सेफ डोज इज लेस देन 50 मिलीग्राम OD, नॉट मोर देन दैट। सो प्रेगनेंसी में भी हमारी कोशिश होती है कि हम 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करें और इसको मैक्सिमम एस्केलेट करें 50 मिलीग्राम तक। और अगर हम पेन के मैनेजमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें और प्रेग्नेंट पेशेंट्स पे स्पेसिफिकली लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को आप यूज करें डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, तो हमें शायद एडजुवेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो सेफ्टी मेजर्स को हमें जरूर ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज अ वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सीलेंट सर, टाइम भी हम देखते हैं 5 मिनट अभी रह गए हैं तो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी एक डॉक्टर उस्मान शाहिद ने क्वेश्चन पूछा है, यूज ऑफ ट्रेमोल में एडिक्ट। इसमें ट्रेमोल की खास डिपेंडेंसी नहीं है। ट्रेमोल आप बड़ा इजीली यूज कर सकते हैं, बड़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। जो मॉर्फिन है और बाकी अदर ओपियाइड्स हैं उनकी डिपेंडेंसी होती है। बट अगर पेशेंट का पेन सीवियर एनफ है, लाइक वो कैंसर पेन है या बहुत डिबिलिटेड कंडीशन है, तो उसमें फिर हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की कंडीशन को किस तरह इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंसी को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे तो हम पेशेंट को पेन को ट्रीट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट। हमें मॉर्फिन देनी पड़ती है, हम ओरल मॉर्फिन देते हैं, हमें उसको एस्केलेट भी करना पड़ता है, बट पेन की कंफर्टेबिलिटी इज आवर प्रायोरिटी।
सो मतलब ये चीजें हम जब इंशाल्लाह ताला वर्कशॉप करेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। लाइक अगर एक कोई 25 साल का पेशेंट है तो शायद उसमें मैं डायरेक्ट मॉर्फिन पे ना जाऊँ, लेकिन अगर कोई 70 ईयर्स का या 70 प्लस है तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं प्राइमरीली मॉर्फिन पे चला जाऊँ। सर एक्सीलेंट। अरे सर एक क्वेश्चन है और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं काइंडली मुझे ना टेक्स्ट कर दें अपना नाम जिनका रह गया है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट आईडी से आए हुए हैं, जो कि उनकी पहले से डिफाइंड आईडी है और अपने नाम से नहीं आए हुए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर हम ये अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिक्लेयर कर रहे हैं इसको पीएमए का, तो काइंडली अपना नाम मुझे टेक्स्ट जरूर कर लें। चंद मिनट रह गए। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, डॉक्टर हनीफ ने बल्कि एक कमेंट दिया है, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ये डेंटल सर्जन है यहाँ पर। ड्यू टू peculiar anatomy and pathophysiology dental pain requires intervention most of the times। इस पे सर मेरे ख्याल है कमेंट आप अगर दें। जी बिल्कुल, और बहुत इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है, और बिलीव यू मी कि ये बहुत डिफिकल्ट पेन है ट्रीट करना फेशियल एरिया का। लेकिन जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन होती है तो उसमें हम काफी से इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हम फेशियल नर्व्स के साथ भी खेल रहे होते हैं, और उसके अलावा हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जियास को देख रहे होते हैं, हमें गजेरियन गैंग्लियन ब्लॉक्स दे रहे होते हैं। सो इंट्राक्रेनियल ब्लॉक्स काफी से हैं जो हमें डेंटल और जो ओरल एरिया का पेन है उसको ट्रीट करने के लिए देना पड़ता है, और इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट, बट इसमें बहुत सी मोडालिटीज हैं, और अगर कभी हमें टाइम ने परमिट किया तो इंशाल्लाह ताला हम डेंटल के ऊपर पूरा एक सेशन रखेंगे। एक्सीलेंट। अब ये जो मोबाइल पे जिन्होंने नाम ही लिखे हुए, अब रेज हैंड तो किया हुआ है, बट आई डोंट नो ये कौन है। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। रेज हैंड डॉक्टर तुफैल का तो मेरे ख्याल है ले लिया। ये इन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, गैलेक्सी लिखा हुआ है लेकिन नाम नहीं इसने मेंशन। अच्छा, इतनी देर में डॉक्टर अरशद का एक और क्वेश्चन। जी जी, एक्यूपंक्चर से रिलेटेड डॉक्टर अरशद का एक क्वेश्चन था कि यूज ऑफ एक्यूपंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी, और ये सारी की सारी मोडालिटीज जो हैं ये पेन में हम यूज करते हैं। हमने जिस तरह पेन मोडालिटीज में डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल में बड़ी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है विद फिजियोथेरेपी, क्योंकि इसके बहुत से इफेक्ट्स हैं। जो सबसे सिंपल इफेक्ट जो मैं आपको साथ जल्दी से बता सकता हूँ कि जो एक्यूपंक्चर नीडल्स है ये हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज करवाते हैं, और एंडोर्फिन्स जो है ये हमारी ओपीआइड्स के लिए के तौर पे काम करते हैं। ये सुप्रास्पाइनल स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, और पेरिफेरी पे भी काम करते हैं। सो एक्यूपंक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ना एक्यूपंक्चर को प्रॉपर यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अच्छा बस ये लास्ट एक डॉक्टर उस्मान शायद ने एक और क्वेश्चन किया, सिवियर लो बैक पेन इंटरवेंशन थेरेपी कितने % इफेक्टिव है? और डॉक्टर और सर लास्ट मिनट रह गया, सॉरी डॉक्टर मुबशिर, इज द लास्ट मिनट। बस ये क्यों टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा भी समझने की कोशिश कर रहे हैं इतने लोगों के सामने। सर लास्ट मिनट क्वेश्चन लेते हैं कि लो बैक में हम काफी सी चीजें कर रहे हैं। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर ये कटता है तो जो लोग ज्वाइन इन कर सकते हैं दे कैन अगेन ज्वाइन इन। इसको हम चंद मिनट और कर सकते हैं, वी कैन डू। सेशन हमारा कंप्लीट है, बट चूंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं आई थिंक इसको हम ना दोज हु वांट टू कंटिन्यू यस दे कैन कंटिन्यू। और मैसेज मुझे प्लीज अपना नाम कर देंगे, मैं बहुत से लूंगा ये, क्योंकि अभी कट जाएगा आपकी बात शायद ना यहीं खत्म ना हो जाए। इसी आई थिंक इस क्वेश्चन को लो बैक पेन इंटरवेंशन कितने % है, रोल ऑफ सॉफ्ट लेजर थेरेपी इन एक्यूपंक्चर, ये भी एक